You are watching Health Matters and I'm your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Haseeb Khan, who's a psychiatrist at Hind Institute of Medical Sciences. Welcome to the show, sir. Thank you for inviting me. सबसे पहले we'll discuss about psychiatry and psychology. आज के टाइम में both the terms are being used interchangeably. जब when we were growing up तो साइकेट्रिस्ट के पास हम तभी जाते थे या किसी को रेफर करते थे जब कोई मेजर इश्यूज है, पागल हो गया है तो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ. नॉर्मल मेंटल इश्यूज या साइकोलॉजिस्ट उतने कॉमन नहीं थे. तो एक्सप्लेन अस कि हाउ साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम साइकेट्री. See, there is a basic difference between a psychiatrist and a psychologist. Psychiatrist is a medical expert that's prescribed the medications. And as far as the psychology is concerned, they are not prescribing, the drug medication, but they are doing the counseling part, the psychotherapy part. We as a medical expert, like your diabetologist, your endocrinologist, your physician, neurologist, we are as a medical expert. But as far as the psychology is concerned, they are more doing of talk therapy rather than prescribed medication. These are the basic difference between psychiatry. But do they work together? A psychiatrist is also a psychologist? No, psychiatrist is not a psychologist, but they are in collaboration for the overall management of the mental illnesses. They definitely have a part in management of the psychiatric disorder, along with the psychiatrist. आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई in the field of See, I am first of all myself Dr. Haseeb Khan, working as a professor and head in Department of Psychiatry in Institute of Medical Sciences. I done my graduation from Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, Aligarh, and my post graduation from one of the oldest institute in India, that is Sarojini Naidu Medical College, Agra. And after that, I have done my senior residency from one of the premium institute in India, that is King George Medical College, Lucknow. And after that, I joined here in Hind Institute of Medical Sciences in August 2015 as assistant professor. And then there the journey started, and it's been 10 years since I'm in collaboration with this institute and became professor and head in the department. When I started here as an assistant professor in 2015, the department was not that much recognized as a psychiatry. But there was a department like medicine was there, surgery was there, orthopedics was there. They have a significance in the institution. But as far as the psychiatry is concerned, उतना impact नहीं था. अभी के टाइम में ज़्यादा हम इन बातों पे बात कर रहे हैं, वरना 4-5 years back भी इतना ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, इन सब को लेके इतनी चर्चाएं नहीं होती थी. जी बिल्कुल सही कहा आपने. देखिए आजकल की लाइफ जो है वो बड़ा rapidly they are changing in. The things are we have a less time, we have more engagement, there are cutthroat competition among ourselves, and obviously the level of the stress is also high. The lifestyle is not that easy or relaxed that used to be before. So much dynamics is changing in the world, and so the prevalence and the challenges that causes the increase in the number of psychiatric cases in India and across the globe also. And do you think social media also has a large role to play in psychiatric diseases जो आ रहे हैं? See, everything has a positive and a negative aspect. If we talk about the positive aspect, then obviously social media help us to connect when we don't have a time, when we are in a state of isolation. You don't find any real friend in current scenario. But you need someone to express yourself. You need someone so that you can share your thought, how you're feeling. So these social media platform give an excellent platform जिसमें हम अपनी बातों को रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं. कहते हैं कि बात कहने से दिल हल्का हो जाता है. तो एटलीस्ट, बट ऑन द अदर साइड इट ऑल्सो हैव a नेगेटिव इफेक्ट. Excess use of social media, be it Facebook, Instagram, and that cause a detrimental effect on the mental health. So it has a both way. एक तो इशू हुआ कि हमें ये लग रहा है कि हम डिप्रेस्ड हैं या मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम किसी से बात कर लिए. उससे भी बात करके नहीं समझ में आता है तो लोग हमें साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं कि गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन, उसको शायद तुम बातें करोगे या वो कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो प्रॉब्ली यू विल फील बेटर. तो काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी एक चीज़ है, बट ये हमें कैसे समझ में आएगा कि वी आर गोइंग थ्रू सम साइकियाट्रिक डिजीज़
एनी सिम्टम्स या ऐसा क्या इस फील्ड में ऐसे क्या क्या डिजीजेस हैं जो हमें अपने बिहेवियर से या लोगों में दिखे तो हमें लगे कि इनके में ये डिजीज ट्रिगर हो रहा है? गुड क्वेश्चन। सी देखिए, कोई भी इलनेस होती है, हम साइकियाट्री में नॉर्मल एबनॉर्मल को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वी आर फॉलोइंग सर्टेन गाइडलाइंस, वी आर लाइक DSM इज देयर, ICD इज देयर, दैट कैटेगराइज द डिफरेंट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। ओके, सो टू चीज वी यूजली सी इन अ पर्सन कि हाँ उसको कोई साइकियाट्रिक इलनेस है कि नहीं। फर्स्ट वन इज द सीवियरिटी, कि क्या उसकी इतनी सीवियरिटी है दैट गोइंग टू मेक अ पर्सन फंक्शनली इम्पेयर। लाइक अगर वो सीवियरिटी ऑफ इलनेस इतनी ज़्यादा है, से डिप्रेशन में अगर सैडनेस ऑफ मूड और अदर सिम्टम हो जो डिप्रेशन, मूड स्विंग्स है, डिक्रीज एपेटाइट है, कंसंट्रेशन नहीं है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, सुसाइडल थॉट्स हैं, आपका आप साइकोमोटर रिटार्डेशन है जिसमें आप बहुत लो फील कर रहे हैं, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम है, दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जब आपको ये होता है, बट वो एक सीवियरिटी में होना चाहिए, इतना सीवियर होना चाहिए कि आपकी बाकी फंक्शनिंग, जैसे आपकी सोशल फंक्शनिंग, आपकी ऑक्यूपेशनल फंक्शन, आपकी एकेडमिक फंक्शनिंग, ये अगर इम्पेयर्ड करती है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इससे इम्पेयर्ड होता है, तो वो सिग्निफिकेंट है। और दूसरा फैक्टर है ड्यूरेशन। ये जो इलनेस होनी चाहिए, डिप्रेशन होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक होना चाहिए। इन केस ऑफ डिप्रेशन वी यूजली टेक 2 वीक्स। अगर कोई चीज़ 2 वीक्स से और इतना सीवियर है कि आपकी फंक्शनलिटी को इम्पेयर्ड करता है, ओनली देन वी मेक अ डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन। लेट टर्म में कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हम आजकल के टाइम में वो टर्म बहुत कॉमनली लूजली यूज करते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट मेडिकली। इन योर टर्म्स दैट इज हाँ कि आई एम फीलिंग लो, आई एम डिप्रेस्ड, बट इन माई टर्म दैट इज नॉट एक्चुअली डिप्रेशन। फॉर डिप्रेशन आई नीड अ सर्टेन symptomatology in the patient and also duration, and that symptom should be severe enough that cause impairment in the patient functioning, then I will say. But ओबियसली वी आर यूजिंग है कि आप यहाँ लो है, ऐसा नहीं है कि आज कोई सर्टेन कोई चैलेंज आ गया, कोई स्ट्रेस लाइफ में आपके आ गया तो आप फील नहीं आज सपोज करिए आप ये आज शूट अच्छा नहीं हुआ, इतने डॉक्टर को इनवाइट किया, कोई नहीं आया, मेरा टाइम भी खराब हुआ, मेरे और कहीं जाना, तो यू फील सर्टेन डिसहार्टेन और काइंड ऑफ लो फीलिंग, बट दैट इज नॉट द डिप्रेशन। ऑन द नेक्स्ट डे यू अगेन हैव अ बंच ऑफ डॉक्टर कि आज तो बहुत ज़्यादा है, आज कल वाला भी काम हो जाए, देन यू सेड हैव अ फीलिंग ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। तो दैट इज द मूड फ्लक्चुएशन, दैट इज नॉर्मल। You have a depression sometime for a low period of time, anxiety is there, irritability is there, anger is there, that is a normal fluctuation of mood, but that if that persists for over a period of time, that make a illness. मतलब कहने को कि अगर 1-2 दिन या हफ्ते भर की बात है तो इट्स ओके, यू कम आउट ऑफ इट, बट अगर 2 हफ्ते से ऊपर हो रहा है, महीने भर जा रहा है और हम उस जोन में है कि हम फिर अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, सारी हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, देन इट कम्स क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन। ओके, जब हम बाकी डिजीज की बात करते हैं, चाहे वो लिवर की हो या किडनी की हो या हार्ट रिलेटेड हो, तो हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स मिल जाता है या डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि 1 ईयर और 6 मंथ्स में आप ये टेस्ट करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन की सिचुएशंस। इन टर्म्स ऑफ साइकियाट्रिस्ट या द फील्ड ऑफ साइकियाट्री, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वी शुड गेट? मतलब एक तो होता है ना, कभी कभी पता भी नहीं चलता, कुछ लोग शायद इतने यूज्ड टू हो जाते हैं या हम भी किसी को देखते हुए इतने यूज्ड हो जाते कि अरे ये तो बात ही नहीं करता, ये तो ऐसा ही है, पार्टी में भी रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, या इसका ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो हमें कोई एनुअल टेस्ट होना चाहिए या क्या ऐसा डायग्नोसिस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम पेशेंट नहीं बन जाए इस फील्ड में? देखिए, यहाँ पे आप बात करिए प्रिवेंशन के बारे में, कि हम इससे पहले कि वो डिसीज़ हो हम प्रिवेंशन मेजर क्या ले सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है आपका अवेयरनेस का। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, जैसे कि आपने बताया लिवर के लिए लोगों में अवेयरनेस है, डायबिटीज़ को लेके इंडिया में अब अवेयरनेस बढ़ रही है, इसी तरह हार्ट की बीमारियों को लेके कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए, हमें अपने वेट को कम रखना चाहिए, सो दैट कि हमें हार्ट अटैक ना हो, स्ट्रोक ना हो। तो बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस दे आर पीपल आर रियलाइजिंग एंड दे आर डूइंग कि हाँ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए आफ्टर 3 मंथ और ईयरली यू हैव टू गो थ्रू आफ्टर अ सर्टेन एज, से 30 और आफ्टर 40 यू शुड हैव अ रेगुलर रूटीन चेकअप। सो वी हैव इनबिल्ट दैट इन द पर्सन माइंड कि हाँ यू हैव अ। सिमिलरली द फील्ड ऑफ द साइकियाट्री नाउ दे आर ग्रोइंग, and as we are concerned for our heart, for our liver, similarly I as a psychiatrist also advise to a general masses कि
first we try to make them aware कि हाँ the depression is there, stress is there, anxiety is there, insomnia, sleep related problem is there. In a older age population we have a dementia is there, आपकी memory में problem आती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा चंचलता, ADHD है, autism spectrum disorders होते हैं, बच्चों में intellectual disability होती है, उनके अंदर स्कूल के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, यू हैव सीन द मूवी तारे ज़मीन पे, उसको बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, यू हैव गॉन थ्रू द मूवी ऑफ माय नेम इज़ खान, द एस्पर्जर इज देयर. तो दीज आर द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. वी हैव टू मेक द in masses aware about these are the real problem. And like that you are concerned with your heart, your liver, your chest. Similarly you have to also focus, because these illnesses as per the World Health Organization, previously the psychiatric illness came at the point of 5th or 7th or 8th cause of the morbidity in the world, but now depression is among the second leading cause of the morbidity. आप ill हैं, ये world के अंदर second most common, and by 2030 as per the WHO, depression is going to be the number one cause in the world for morbidity. So we as a psychiatrist, we are sensitizing the general public. We are making them aware that these are the symptoms you should be look after in early stage, so that you not get into the severity of the illness. Different tests are available for that in a general public, or we through the form of like social media, radio, FM program, different conferences, CME, public awareness camp, we are doing it in Hind also. So we make them, we put an effort कि हाँ एक जनरल मासिस में इंफॉर्मेशन जाए कि दिस इज द सिम्टम वी शुड लुक इनटू. पर्टिकुलरली वी आर टारगेटिंग अ वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक चाइल्ड, है ना. चाइल्ड अर्ली एज में अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा चंचल ज़्यादा है, ये है, स्ट्रेसफुल वर्कर्स हैं, जॉब सिनेरियो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयड वर्कर हैं, सब्सटेंस यूज जिनमें जैसे ये एडल्ट हैं उनमें सब्सटेंस यूज ज़्यादा है, फैमिली कन्फ्लिक्ट है, मैरिज है, डाइवोर्स है, या कन्फ्लिक्ट एरिया में कोई बच्चा है जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो पास्ट में, या चाइल्ड एज में कोई सिग्निफिकेंट मैटरनल या पैटर्नल साइड में या मदर फादर का कोई लॉस रहा हो अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसको एक पेरेंटिंग प्रॉपर ना मिल पाई. दीज आर द वल्नरेबल पॉपुलेशन. तो हम इसको टारगेट करते हैं क्योंकि दे हैव अ मोर चांस ऑफ हैविंग psychiatric illnesses in their later life. So in populations ko we are generally targeting and doing a different kind of awareness program, so that we can catch the illness in early stage and then manage effectively. कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं, लाइक एक तो आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट में या वैसे लोग करते रहते हैं. इसमें भी इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको करके पता चल जाता है कि इंसान का क्या स्टेटस है. देखिए वो एज ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, मैंने जैसा बताया वल्नरेबल पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है. सपोज बच्चा है, अगर वो पढ़ने में एक कंप्लेंट आती है कि हमें यूजली वी ऑल्सो डू द टेस्ट इन कोलैबोरेशन विद द स्कूल. तो स्कूल से करते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं, दे विल एक्सप्लेन कि हाँ किस बच्चे में अभी लर्निंग नहीं हो पा रही, उतना अच्छा कैच नहीं कर पा रहा है. तो हम ऐसे टीचर्स से, प्रिंसिपल्स से, या स्कूल जो एजुकेटर्स होते हैं, जो वहाँ के काउंसलर होते हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेशन में हम कैंप रखते हैं. तो ऐसे बच्चे को टारगेट करते हैं जो हम अर्ली स्टेज में, सो दैट अगर हम इंटरवेंशन जल्दी करेंगे तो बच्चा पॉप अप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सिमिलरली हम लोग वी ऑल्सो डूइंग, जैसे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में वी आर वर्किंग एंड डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ कैंप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं. स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा जॉब है, उसके अंदर वो कॉप अप नहीं कर पा रहा, उसमें हेडेक है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन है, सुसाइड इज ऑल्सो कॉमन इन दैट पॉपुलेशन. तो एक अवेयरनेस करते हैं कि अगर ऐसा है तो वी अप्लाई कॉमन टेस्ट, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी. हमें पता है कि इस एज ग्रुप में ये चांसेस ज़्यादा है. सपोज के लिए एडल्ट और एडल्ट एज में द चांसेस ऑफ एडिक्शन यूज इज हाई. सुसाइड इज ऑल्सो हाई एज पर द WHO डाटा. आप देखेंगे 15 से लेके जो 45 की एज होती है, इनमें सुसाइड द चांसेस ऑफ सुसाइड इज वेरी हाई. 75% इसी एज ग्रुप में मिलेंगे आपको. तो हम ऐसी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं. कुछ जो क्वेश्चनर होते हैं सुसाइड से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, एंग्जाइटी से रिलेटेड, सब्सटेंस यूज, बीट अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चनर होते हैं वी अप्लाई. क्योंकि काइंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ताकि उनका भी टाइम ज़्यादा ना लगे. अब वी आर स्क्रीनिंग, वी आर नॉट ट्रीटिंग, वी आर नॉट प्रॉपरली डायग्नोसिस, बट वी आर स्क्रीनिंग दैट पेशेंट.
who are vulnerable कि हाँ इनको chances हो सकते हैं, तो we are customizing our scales according to the need of the population. We cannot obviously we cannot do the test to the whole the population because in India the psychiatrists are very meager in number. कि 0.75 is the number per lakh population. मतलब we don't have a one psychiatrist on 1 lakh population. This is the data of WHO. और होना कितना चाहिए the WHO say at least 3 psychiatrists should be there in 1 lakh population. Wow. We have a 0.75. So not even a single psychiatrist there to cater 1 lakh population. So we are, but still the government of India looking into it. They are doing different survey. The recent one was the National Mental Health Survey 2016. Where the prevalence of psychiatric illness is almost 1 person in a 6. Okay. 1 in 6 having some kind of mental illness in India. So we need a huge number of psychiatrists. So as far as my knowledge, around 9,000 psychiatrists is there in India currently. Currently 9,000. Or we need at least 36,000 to match that ratio. So that's a good career opportunity, I think. Yeah, youth. Definitely. It's a good field of study to take up and take this career. एक डाउट और या एक मिथ जो दिमाग में ये भी आता है कि क्या हमारे फिजिकल एलिमेंट्स के वजह से भी हमें साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं? अगर हमारी इंटरनल ऑर्गन्स या बॉडी में फिजिकल हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कैन दैट ऑल्सो लीड टू साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स? दिस इज वन एस्पेक्ट कि भाई फिजिकल इलनेस की वजह से कोई साइकेट्रिस्ट. द other ways around is also true. Means psychiatric illness की वजह से physical health, okay. तो vice versa दोनों है. It's a bi-directional. Physical illness से diabetes है, chronic illness से cancer is there, COPD means lungs की illness is there. Right. कोई chronic infection है, untreatable है, जो कि ठीक नहीं हो सकता. That lead to different kind of psychiatric manifestation. Like patient of cancer. अगर किसी को न्यूली कैंसर डायग्नोज हुआ तो ऑब्वियसली वो दैट इज द शॉकिंग टू द पेशेंट. डिप्रेशन. तो वो एक लॉन्ग टर्म में वो डिप्रेशन उसको हो सकता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है कि आई एम गोना डाई बिकॉज आई एम डायग्नोज विद द सच काइंड ऑफ लीथल कैंसर. तो ये तो हो गया फिजिकल इलनेस की वजह से साइकेट्रिक इलनेस. सब्सटेंस यूज है, आप अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत क्रॉनिक यूज है, तो उसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ साइकेट्रिक इलनेस रहती है. कैनबिस का यूज़, गांजा भांग का यूज़ की वजह से साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती है. क्रोनिक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, बिकॉज अब आपको पता है ज़िंदगी में आपको दवा खानी है, तो दैट ऑल्सो गिव अ नेगेटिव स्टिमुलस टू द ब्रेन एंड दैट लीड टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस. तो ये इम्पैक्ट है. सिमिलरली सपोज करिए कि आपको कोई साइकेट्रिक इलनेस ऑलरेडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है. स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल इलनेस बहुत कॉमन होती है जिसमें आपको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन होते हैं. मतलब जिसको एक्चुअल आप कहते हैं कि पागल हो गया, कि आपको चीज़ें दिख रही हैं जो एक्चुअल में है नहीं. आप विजुलाइज कर रहे हैं, यू आर विजुलाइजिंग, यू आर सीइंग समथिंग दैट इज नॉट रियल. यू आर यू हैव अ सस्पिशियसनेस कि समवन वांट टू किल मी, समवन वांट टू हार्म मी, बट दैट इज नॉट एक्चुअल ट्रू. तो यू आर इन दैट स्टेट. तो in a chronic phase that also affect your brain physically also in the form you are not taking care of yourself, you are not taking proper diet that lead to ultimate physical detrimental of your health. बुक्स और नॉवेल्स या फिल्म्स में हम देखते हैं कि स्प्लिट पर्सनालिटी होता है, क्या ये सही में होता है? देखिए, split personality, yes, there is a disorder called dissociative personality disorder. It's a part of the brain disorder when you have acute stress in your brain that lead to a dissociation of yourself from others. You acquire the new personality for transient period of time. That is not in your sense. So because of the stress that happen, you have a personality, you acquire the personality of someone else. And you start behaving like that person. You start behaving like that. That is a part of the psychiatric disorder. So भूल भुलैया में exactly. तो अब क्योंकि movies I think जब बनती हैं और इस तरह के issues को highlight करती हैं तो एक तरह से awareness बहुत generate होता है. You take the example of Deepika Padukone. Right. She has excellently explained her journey, ordeal through the phase of depression when she has gone through. In fact, उसके बाद से ही बहुत सारा discussion शुरू हुआ. It was thought it was because of the some side of depression. He was taking treatment from Delhi. Some psychiatrist, he was on antidepressant, and because of that, so that celebrity, if they contribute in any way to these topics of mental health, positive mental health, that's going to impact hugely, because they have more of fan following. So definitely, if we involve some sort of celebrity or some significant figure in our society, that's going to have, create a positive impact, and that help us
to create a breakthrough awareness regarding these illnesses. After that incident, many of people, they are discussing, they are talking. They have about realized कि this this is real, this is something. and this is not. सेलिब्रिटीज को हो रहा है जिनके पास सब कुछ है, स्टिल दे गो थ्रू दिस फेज, दैट मीन्स इट्स नॉर्मल टू गो थ्रू दैट, एंड यू शुड विजिट अ डॉक्टर. Whenever you are need, you should seek help rather than you are going through ignorance or avoidance कि नहीं मुझे ऐसा तो डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब मेरे या जो जिनको नहीं नॉलेज होती है, मेरे दिमाग का फितूर है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा. डिप्रेशन इज अ मेडिकल इलनेस. इट्स नॉट लाइक कि आप इसको फेक कर रहे हैं, फेन कर रहे हैं, या आप सिर्फ स्ट्रेस ले लिए तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा. नहीं कुछ नहीं. या आप जैसे अमूमन दोस्तों में बातें होती है कि यार डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, 2 पैग लगाओ सब ठीक हो जाएगा. दैट इज द मतलब फुलिश स्टेटमेंट फ्रॉम अ फ्रेंड और अ कलीग. अगर कोई ये वो स्टूपिड स्टेटमेंट है, एंड उसी से आई थिंक फिर वो ड्रग अब्यूज शुरू हो जाता है, सब्सटेंस अब्यूज में आप चले जाते हैं. दीज ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. आप डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आर टेकिंग अल्कोहल कुछ मोमेंटली टाइम के आपके माइंड को ईज कर देगी, रिलैक्स कर देगी, बट इन अ लॉन्ग टर्म दैट गोइंग टू बी डिट्रीमेंटल टू योर हेल्थ. राइट, एंड उसी से फिर और फिजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं. तो एट हिंद आर वी केपेबल ऑफ डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेस? Yes, definitely. We are dealing a variety of cases in our Hind Institute. Say depression, anxiety, insomnia, schizophrenia, bipolar disorder, different kind of substance use. Drug abuse is there, or apart from that, we are also doing the marriage counseling, sexual wellness clinic. We are also running for geriatric population, old age patient. Right. We are running special clinic, geriatric clinic is there, and in that we also providing telemanaged counseling. That is all through online medium. The outreach populations के लिए that is a boon for them कि वो विजिट नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज देयर, तो वो आ नहीं सकते. तो हम कैंप्स लगा रहे हैं. ओके, थ्रू कैंप और थ्रू टेलीमानस थेरेपी, दैट इज द टोल फ्री नंबर इज देयर. ओके, इन गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड दैट पार्ट, एंड वी आल्सो डूइंग इन आवर बिट इन दैट वेयर वी आर हेल्पिंग पेशेंट. सपोज एक सुसाइडल पेशेंट है, बहुत जिसको एक अर्ज है, थॉट आ रही है, इम्पल्स है कि सुसाइड करने की, सो वी हैव प्रोवाइडेड द टोल फ्री नंबर. गवर्नमेंट ऑल्सो डूइंग दैट कि एक टोल फ्री नंबर है, थ्रू आउट 24/7 अवेलेबल है. ही कैन कॉल एंड सीक द सपोर्ट. वो एक आप पीक जब खत्म कर देते ना कि आपने एक काउंसिल कर दिया, उसमें अर्ज है बहुत सीवियर है, तो इट हेल्प अ लॉट कि वो एक सडन जो सुसाइडल अर्ज थी वो एक डाउन थोड़ा सा डाउन, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है. देन यू डाइवर्ट द पेशेंट टुवर्ड्स द नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट कि आप जाइए और काउंसिल कीजिए. ये सुसाइडल थॉट है या डिप्रेशन है, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. बट ओवर द इयर्स वी हैव सीन कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो बच्चों में हो कि एग्जाम नहीं अच्छा हुआ, टेस्ट नहीं अच्छा हुआ, या यूथ में हुआ वन साइडेड अफेयर या लव या उस तरह से, और फिर मैरिड केसेस में डिवोर्सेस को लेके जो एक अभी भी 2-3 केसेस तो करंट में ही चल रहे हैं, जिसके वजह से मतलब डिवोर्स चल रहा है एंड पीपल कमिटेड सुसाइड. टू सच पीपल हु आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस, what do you suggest, or as a whole what should we do on a daily basis to keep our mental health good? See, देखिए स्ट्रेस, ये इन सब चीज़ में जो कॉमन चीज़ है, कोर टर्म है, दैट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में उसकी फॉर्म अलग होती है, बट दैट इज अ स्ट्रेसफुल टू यू. फॉर सपोज करिए बच्चे के लिए अगर मदर की एक्सपायर हो जाती है अर्ली एज में, तो दैट इज स्ट्रेस टू दैट चिल्ड्रन. ठीक है. एडोलसेंट एज ग्रुप में सपोज करिए अगर आप फेलियर हो जाते हैं किसी कॉलेज में, आपने 12th नहीं पास की, आप ग्रेजुएशन नहीं कर, एडल्ट में आपकी जॉब लॉस हो जाती है, यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू आर नॉट फाइंडिंग, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल. फिर मिडल एज में आता है मैरिज को लेके, डाइवोर्स है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चा है, बच्चे को कोई इलनेस हो जाती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल. फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत हैं, एक लिमिटेड स्पेस है, और फिर जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है यू बिकम लोनली, सॉलिट्यूडनेस आ जाती है, क्योंकि आप वाइफ, बच्चे और बाकी जो सोशल नेटवर्क है जैसे प्रीवियसली यूज्ड टू बी पास्ट में, वो चीज़ें आप में मिसिंग होती है. तो वेयर आर यू, और फिर इसके आगे आप बढ़ते हैं तो फिर लेट एज में अगर आप देखते हैं तो उसके फिर डिमेंशिया है, मेमोरी इम्पेयरमेंट है, आपकी फिजिकल डिफॉर्मिटी इतनी होती हैं, यू हैव आर्थराइटिस, यू हैव अ कार्डियक प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से यू नीड अ समवन टू केयर ऑफ. केयर गिवर आपको चाहिए, केयर गिवर नहीं है क्योंकि अब ऐसी मॉडर्न लाइफ में मेट्रो सिटीज़ में तो आपके पास और कोई है नहीं जो आपको सपोर्ट कर सके. तो ये फेजेस क्या होते हैं कि लाइफ के क्रूशियल्स होते हैं. तो इसमें हमें ये समझना है कि स्ट्रेस डिफरेंट फॉर्म ले सकता है, बट दैट इज़ देयर. बट स्ट्रेस को आप
हमेशा नेगेटिवली नहीं देखते। स्ट्रेस के दो कंपोनेंट रहते हैं, एक कंपोनेंट होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड। आप किसी काम के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप उस काम को नहीं करेंगे। करेक्ट। तो कोई भी जैसे मुझे यहाँ आना था, आई हैव सर्टेन यू स्ट्रेस कि नहीं मुझे जाना है, जी को फेस करना है, कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं क्या रिप्लाई करूंगा, दैट्स अ गुड स्ट्रेस। दैट इज अ गुड स्ट्रेस, वो होना चाहिए। अदरवाइज मैं मोटिवेटेड नहीं रहूँगा, मैं अनप्रिपेयर्ड आऊँगा, मुझे कुछ जवाब में हेजिटेशन होगी, आई विल नॉट लुक कॉन्फिडेंट इन दैट कि हाँ मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप यू विल फील कि हाँ वो थोड़ा सा डल है, वो एक्सप्रेशन नहीं है, नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, आवाज़ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है। सपोज कल एग्जाम है बच्चों का, अगर आप आज स्ट्रेस नहीं होंगे, अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट इज कॉल्ड फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। या तो आप इस सिचुएशन से भागेंगे या उसको फेस करेंगे, तो स्ट्रेस प्रिपेयर्ड दैट। लेकिन अगर वो स्ट्रेस क्रॉनिक हो, अगर वो क्रॉनिक हो जाए, आप जो चीज़ों से स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उन चीज़ों से स्ट्रेस ले रहे हो, या स्ट्रेस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, या जो आपके डिफेंसेस या कॉपिंग स्ट्रेटजी है कि इस स्ट्रेस को कैसे डील करना है वो आप में कम है, तो इसमें दो कंपोनेंट आते हैं। एक तो आपका डिफेंस क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है उस स्कोप को उस स्ट्रेस को डील करने के लिए, और वो स्ट्रेस लेवल कितना है, ये डिपेंड करता है कि आपको वो स्ट्रेस कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ये आप हटा नहीं सकते। स्ट्रेस तो है, आई थिंक किसी की भी लाइफ को हम उसको माने ना माने, रियलाइज करें नहीं करें, स्ट्रेस इज देयर। कुछ तो काम हमें क्या करने का करना है, स्ट्रेस, अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट, वो अपने हमें आप को प्रिपेयर करना है। देखिए, अपने आप को प्रिपेयर करने का यही है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए रूटीन में हम ये देखते हैं कि हर स्ट्रेस को डील करने का तरीका होता है। कुछ स्ट्रेस होते हैं जो डेली के होते हैं कि भाई डेली ये चैलेंज है कि मुझे ये टास्क करना है, ये करना है, ऐसे तैयार करना, आना है, बस में बैठ के यहाँ से वहाँ जाना, वो भी मेरे लिए स्ट्रेस है। वो जाना है, भीड़ में जाना है, वहाँ बॉस की डांट भी खानी है, काम भी करना, ये स्ट्रेस है। कुछ स्ट्रेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे फैमिली में डाइवोर्स चल रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कुछ चल रहा है, और बच्चे का कोई इलनेस जो है चल रही है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से हम इस समय गुजर रहे हैं, वो हमारी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो एक तरह का क्रॉनिक स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपकी कॉपिंग स्ट्रेटजी जो होती हैं, आपके डिफेंसेस जो वीक हो जाते हैं, देन यू लैंड अप इन डिफरेंट काइंड ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। वो डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। यू स्टार्ट यूजिंग अल्कोहल कि भाई ये स्ट्रेस आई एम नॉट एबल टू कॉप, तो अब मैंने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया। तो अगर आप उसे पॉजिटिवली नहीं हैंडल करेंगे, देन यू लैंड अप इन डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिपेयर्ड है, मेंटली आप स्ट्रांग है, आपको पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, आई कैन ओवरकम दैट, तो उसके लिए आपको यू हैव टू प्रिपेयर। तो वो स्टार्ट होता है अर्ली एज से। वो उसका रोल अगर आप मुझे स्टार्ट से करेंगे तो बच्चों से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वी आर नाउ प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ इन स्कूल। अब हमने वहाँ से शुरू कर दिया है कि इसकी सिग्निफिकेंस को बच्चों में ही एनरोल करना चाहिए कि बच्चे एग्ज़ाम है। आपने देखा होगा कई प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी भी करते हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों के जब एजुकेशन, जब CBSE का एग्ज़ाम होता है तो वो क्लास लेते हैं, तो उसमें वो यही बताते हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और आप पहले से काउंसलिंग कर रहे हैं कि बेटा ये पार्ट ऑफ, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो उसके लिए लाइफ में एक तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जिसमें कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे योगा is very important. Everyone should do yoga. Everyone should do at least 40 to 45 minutes of exercise. एक regular aerobics exercise is very needed, है ना. Yoga is there. A good quality of sleep. If you have a good quality of sleep, na 50 to 60% of mental illness that cannot touch you. Right. The good quality of sleep is very important for your mental health. So, good quality of sleep from 7 to 8 hours of sleep. 8 hours of good sleep is necessary. Of sound sleep is necessary for different vital function in your body also. हाँ, तो ये बहुत important है। और अगर एक चीज़ से जिससे आपको सबको बचना चाहिए वो एडिक्शन है। आप चाहे टोबैको लेते हो, स्मोक है, टोबैको है, अल्कोहल है, कैनबिस है, you have to be away from that, drugs also. और also spare your time in between your busy schedule, जिसमें आप वॉकिंग कर सकें और कोई हॉबी परस्यू कर सके, कंटिन्यू कर सके, कुछ वॉक कर सके। जो आपको दिल करता है कि एक ब्रेक चाहिए, वो बीच बीच में ब्रेक लेती है। ओवर बर्डन मत करिए अपने आप को, ओवर बम्बार्ड मत करिए थॉट से। और लाइफ को ये सोचिए
कोई भी सिचुएशन आती है वो एंड नहीं है, वो एंड हो ही नहीं सकता, एंड नहीं हो सकता, वो एंड हो ही नहीं सकता। जब तक कहते हैं ना कि एंड अच्छा ना हो, खूबसूरत ना हो, तब तक वो एंड नहीं है। तो आप स्ट्रगल करिए, फाइट करिए, और अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू कॉप दैट, यू कैन सीक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल लाइक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट देयर, साइकियाट्रिस्ट देयर टू हेल्प यू इन दैट थिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर खान, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। यू गेव मी अ फीलिंग कि वो डियर जिंदगी में जैसे शाहरुख खान से वो बात कर रही थी, तो दैट वाज अ फीलिंग। सो गुड लक टू यू फॉर योर प्रोफेशन, एंड आई होप पीपल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे परस्यू योगा, फिटनेस, meditation, good lifestyle and good sleep. So thank you. Thank you.